Hello everyone, welcome back to our Indian Polity and Governance series, and this is lecture 2. In today's lesson, we will explore the constitutional development during the British period, a crucial foundation for understanding how India's governance system evolved. But before we dive into that, let's take a quick recap of what we covered in the last class. So as you can see here in the screen, first topic, that is the idea to half constitution, was given by M.N. Roy. Last class time discuss करथिले. Next, the present constitution was framed by the Constituent Assembly of India, set off under cabinet mission plan. The Constituent Assembly consisted 389 members in total, but when the Muslim League decided to withdraw its member from the Constituent Assembly of India due to the partition of Pakistan, the membership of the Constituent Assembly of India was reduced to 299. Then elections to the Constituent Assembly was conducted on the basis of proportional representation with single transferable vote. Then the drafting committee formed under the leadership of Dr. B.ed Ambedkar. I hope mone thibo, there are 13 committees and drafting committee one of that. The first meeting of the Constituent Assembly took place on December 9, 1946, and interim president thile Dr. Sachidanand Sinha, and December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of Constituent Assembly. Okay students, one thing you need to know here, that is Dr. B.ed Ambedkar जेहेतु ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले, लीडर थिले, दैट्स व्हाई तांको कहा जाए फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ही वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आज रो क्लास रे हम डिस्कस करिबा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया. So here you can see, to understand the constitutional development in India, we need to go through the history. हमको टिके हिस्ट्री को एनालिसिस करिवार अछि. ओके, as you can see here this timeline, 1498 the year जब कि यूरोपियंस माने, यू नो यूरोपियंस मान को भितर पोर्तुगीज जे कि भाया सी रूट फास्ट केम टू इंडिया, एंड भास्को डा गामा थिले जे कि जने पोर्तुगीज थिले discovered sea route to India, that is in 1498, and 1600 AD, and that was the year जब कि East India Company of British came to India, that was in 1600. The next is 1765. From 1600 to up to 1765, East India Company of British भारत रे केवल गोटे ट्रेडिंग कंपनीज भावे वर्क करथला. And 1764 रे, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, 1765 रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. रिमेंबर दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ओके, 1765 पूर्वरु, ओके, पाखापाखी 165 इयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे थिला, बट भारत रो पॉलिटिक्स रे एडमिनिस्ट्रेशन रे माने केबे भी इंटरफेयर करि नथले. 1765 थिला फर्स्ट ईयर ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन करा जाइतला, एंड फ्रॉम दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. एंड देन नेक्स्ट, फ्रॉम 1773 टू अप टू 1857, we were governed by the ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. ओके, आम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन होते 1773 टू 1857, एंड फ्रॉम 1857 टू 1947 आम ब्रिटिश रो क्राउन, ओके, ब्रिटिश रो गवर्नमेंट द्वारा आम शासन हेले. सो दिस इज द टाइमलाइन बुझा निहाती दरकार, एंड आ थ्रू आम हिस्ट्री को भी एनालिसिस करवा. सो आई होप गोटे ओवरऑल टाइमलाइन माइंड आसते थो. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एंट्री करते एंड 1947 रे इंडिया रू बाहर जाइए. ओके, सो in this video we are discussing constitutional development in India, and to understand the constitutional development in India, we need to start our discussion from the British rule.
Okay, constitutional why na constitutional development in India began during the period of British rule. कौन कहा जाउची वर्तमान आमे जो constitution देखुचे वर्तमान आमे जो भारत रा constitution रे आमे different provisions देखुचे actually ए जो provisions बा ए जो rules and regulation ए सबु रो source थिला बा आमे कहि पारे ए सबु रो आरंभ होइतला from the British period. The direct source of the constitution lies in the administrative and legislative development of the British period. वर्तमान भी भारत रा constitution रे किछि एभली सब provisions अछि जो सब provision गुडी का हमरो British period रु ही थिला. It means yes आमे कहि परिबा 1946 डिसेंबर 9 रु आमे Constituent Assembly को रन करेले एंड Constituent Assembly हमरो भारत पे गुटे constitution prepare कला मना नुह बट आमे जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कले आम कॉन्स्टिट्यूशन टी को आइडिया ऊपर बेस रहबा दरकार को बेसिक वैल्यूज रे ये बिलीव करियो भारत रो गवर्नेंस केमित रहबो भारत रो जुडिशियरी केमित रहबो सॉरी भारत रो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन ए जो आइडिया ए सब आइडिया रूटेड थिला कहा सहित ना ब्रिटिश रूल तो आम कहीपर भारत में जहाँ भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट होता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश पीरियड से सबू बा से सब एक्सपीरियंस हमको बहुत हेल्प करथिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिया पे सो भारत रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को बुझिया पे हेले हमको ब्रिटिश पीरियड रु ही ब्रिटिश रूल समय रा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स को भी बहुत भला भाबरे बुझिवार अछि सो if you talk about British rule then first आमे कहि परिबा regulating act 1773 ये थिला first constitutional measure आमे कहि परा प्रथम administrative and legislative development जहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इंट्रोड्यूस कराइथिला ओके ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 रे गोटे regulating act आस्थिला as I have already told you 1765 रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन रे एंट्री करछि एंड एंट्री करिबा परे परे 1773 रे ब्रिटिश पार्लियामेंट गोटे लॉ बा में कहि परे गोटे न्यू रूल एनाक्ट करिछि अकॉर्डिंग टू दैट भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कोहुली एडमिनिस्ट्रेट करिवो से रिगार्डिंग गोटे रूल आछि जाहा को हम कहउचे द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 and this laid remember regulating act 1773 this laid the foundation for centralized British administration in India गोटे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे पूरा भारत को जो शासन करिबा आर गोटे फाउंडेशन जदि केबे पड़िथिला then that was through the regulating act of 1773 we'll discuss in detail later एबे जस्ट हमें ओवरऑली बुझिया पई ट्राई करछे Over time, several constitutional experiments or we can say several administrative and legislative measures were introduced to improve the governance 1773 रु आरंभ करी 1947 पर्यंत बहुत किछि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट आछि बा बहुत गुडा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स आछि एंड जहा कि इंट्रोड्यूस कराइथिला भारत रे गवर्नेंस को केमती इंप्रूव करा जाय परिबो एंड ए सबरो बहुत किछि रोल अछि भारत रा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस रे 1857 as you know revolt of 1857 रे हितला सिपाही विद्रोह एंड आफ्टर सिपाही मुटिनी ओके वर्तमान जो ईस्ट इंडिया कंपनी माध्यम रे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को शासन करूथला आफ्टर 1857 रिवोल्ट वर्तमान कौन होची ना ब्रिटेन रो गवर्नमेंट ब्रिटिश क्राउन ए एडमिनिस्ट्रेशन को निज हाथ को नहीं आउचंदी ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी सो अगेन आई एम टेलिंग यू मु पुनी थरे कहि रखिया पई चाहिबी दैट इज 1857 बिफोर एंड आफ्टर 1857 बिफोर कौन थिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी जी की गोटे ट्रेडिंग कंपनी थिला एंड ब्रिटेन रो गवर्नमेंट थ्रू दिस ट्रेडिंग कंपनी भारत को शासन करथला केबे ना प्रायर टू 1857 बट आफ्टर 1857 आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट वर्तमान कौन ना वर्तमान ब्रिटिश गवर्नमेंट आम कहीपर ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत उपरे डायरेक्टली शासन करने को लगिले ये हूँ डिफरेंस सो आफ्टर 1857 ऑल्सो बहुत किसी मेजर्स आसी बहुत किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डिसीजन नहीं
एंड से सब विषय आम आज वीडियो डिस्कस करवा. सो एज यू कैन सी ब्रिटिश पीरियड रो जदि आम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को आम कंसीडर करवा देन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू मेन फेज. वन दैट इज फ्रॉम 1609 टू 1857 बा आम कहि परिबा 1857 sorry that is from 1773 to 1857 ए पीरियड कहीं ना 1609 टू 1773 मुझे कहली ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड करतुला इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एमाने केबे एंट्री करनतले. फ्रॉम 1773 टू आम कहि परिबा 1765 टू आम कहि परिबा ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट रो सुपरविजन रे भारत को शासन करिबार लागिला. सो 1773 टू 1857 गोटे फेज थिला जो समय कि बहुत किछि एक्ट आसी एज यू कैन सी रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट. एंड आफ्टर 1857 कौन है ना ब्रिटिश क्राउन भारत को डायरेक्टली शासन करछन. एंड से समय भी एज यू कैन सी हियर बहुत गुडा न्यू एक्ट आसी लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. सो ये सबू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बाय सबू एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस रे बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करछि. तो ये सब एक्ट को आम आज वीडियो रे डिस्कस करिबा. एंड इन दिस वीडियो मेनली आम फोकस करिबा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल दैट इज फ्रॉम 1773 टू 1857 ए पीरियड को आम आज वीडियो रे डिस्कस करिबा. सो लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. एठी काहेकि लिखाई द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1773 रु 1857 पर्यंत ब्रिटिश रो क्राउन थ्रू ए कंपनी ओके ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जे कि गोटे ट्रेडिंग कंपनी थिला. थ्रू दिस ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश रो गवर्नमेंट बा ब्रिटिश क्राउन भारत को शासन करथुला. ओके एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1773 टू 1857 भारत रे बहुत किछि एक्ट बा बहुत किछि नियम को अणा जाइछि, बहुत किछि रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्पोज करा जाइछि. तो से सब को आमे डिस्कस करिबा सो दैट आमे गोटे आइडिया पाई परिबा जे केमिति ब्रिटिश रूल इंडियन गवर्नेंस को सेप करछि बा आमे कहि परिबा भारत रो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रो फाउंडेशन कहा सहित लिंक आमे कहि परिबा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773. देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अंडर रे बहुत किछि डिसीजन निया जाइछि. ओके बहुत किछि रूल्स एंड रेगुलेशंस ता अंडर रे थिला बट आमे केवल से सब प्रोविजंस को ही आमे डिस्कस करिबा जहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो इंपोर्टेंट. सो लेट्स से 1773 एक्ट अंडर रे कोन सब न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराइतला भारत रे. फर्स्ट वन इज subjected the company's action to the supervision of the British government. It means that governance of the East India Company was put under the British parliamentary control. मुझे कहली दैट इज 1773 रू अप टू 1857 ए पीरियड थिला कौन ना ईस्ट इंडिया कंपनी माध्यम रे के शासन करतला भारत को ना ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो कंपनी रो एवरी एक्शन बा ईस्ट इंडिया कंपनी रो गवर्नेंस थिला का हाथ रे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर रे थिला अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो 1773 को होतला दैट इज गवर्नेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी माध्यम रे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर रहइबो. ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी माध्यम रे भारत को कौन करिवो शासन करिवो. को एक्ट रे कहा जाइतला ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773. एंड ऑफ 12 गवर्नमेंट आमे जेतेबेले हिस्ट्री डिस्कस करिबा से समय रे मु ए कांसेप्ट को जिबी जेतेबेले 1764 रे कौन हिची ना बैटल ऑफ बक्सर. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 रे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करा जाइची. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया रे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराइथिला. कौन डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आम एमती कहि परिबा दैट इज अकॉर्डिंग टू 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद प्रथम थर पई
ईस्ट इंडिया कंपनी को बामे कहि परिबा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हाँ इनडायरेक्टली दीवानी राइट मिलिथिला दीवानी राइट मीन्स सेमानकु रेवेन्यू कलेक्शन रो राइट्स मिलिथिला तो कहि परिबा एडमिनिस्ट्रेशन रो किछिटा रेस्पोंसिबिलिटी थिला कंपनी हाथ में एंड किछिटा रेस्पोंसिबिलिटी थिला से समर नवाब को हाथ में तो आकु कहउथला डुअल गवर्नमेंट बट से डुअल गवर्नमेंट को एंड करा जायथला अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अगेन आई एम टेलिंग यू डिटेल्स भी जेतेबेला हम हिस्ट्री डिस्कस करिबा नाउ यू जस्ट रिमेंबर अंडर रेगुलेटिंग एक्ट कौन डिसीजन नियाथला नेक्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया ओके इटा को नहीं कि पिला मानक मन रे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुए एबे होबनी जेतेबेले मैं आगु को पढिबा चार्टर एक्ट 1853 एंड लेटर ऑन सेतेबेले कंफ्यूजन क्रिएट हबो ताकु डी भलसे बुझिबा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1773 भारत रे जदि हमें ब्रिटिश टेरिटोरीज कहबा तीनोटी एरिया थिला वन इज कोलकाता सेकंड वन इज बॉम्बे एंड मद्रास दाहाकु कहा जाउथला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ओके थ्री प्रेसिडेंसी से समय थिला वन इज कोलकाता सेकंड वन इज बॉम्बे एंड मद्रास एंड कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास प्रत्येक प्रेसिडेंसी पाई गोटे गोटे कौन थिले ना गवर्नर जनरल थिले बट कोलकाता बॉम्बे मद्रास भितरु जो बेंगल बा कोलकातार जी गवर्नर थिले गवर्नर ऑफ बेंगल ओके कोलकाता पाई भी गोटे गवर्नर थिले बॉम्बे पाई भी गोटे गवर्नर थिले एंड मद्रास पाई भी गोटे गवर्नर थिले बट ए तीन जनक भितरु कोलकातार जे गवर्नर थिले ओके गवर्नर ऑफ बेंगल तांको अपॉइंट करा गला गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज ऑफ इंडिया इट मींस जो तीनोटी प्रेसिडेंसी थिला ए तीनोटी प्रेसिडेंसी रो पुनी शासन भार बा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काहाकु दिया जायथिला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बा कहि परिबा गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज ऑफ इंडिया एंड दिस वाज decided according to the regulating act 1773 and remember gote supreme court p first time pa india re introduce कराइतला supreme court was established in kolkata that was in 1774 रे सुप्रीम कोर्ट पे इंडिया रे स्टार्ट करा जायतला सो ये कहि परिबा आउर भी बहुत मेजर्स थिला अगेन आई एम टेलिंग यू बट किछटा इंपोर्टेंट हमें डिसीजन बा किछटा इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को ही हमें डिस्कस करिबा जहार कि बहुत इंपोर्टेंट रोल थिला परवर्ती समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिसेप करिबारे बा में कहि परिबा जो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट से सब को हम ये पार्ट डिस्कस कले नेक्स्ट वन इज पिट्स एक्ट ऑफ 1784 बहुत पिलांकर कंफ्यूजन रेगुलेटिंग एक्ट तो बुझा पड़थिबा रेगुलेटिंग वाटी कोठ अछि बट पिट्स रे बहुत पिलांकर इश्यू बुझी पारंतनी पिट्स इंडिया एक्ट नेम एवली काइंग करा जायछि ना बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1784 ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर जी थिले विलियम पिट ओके तांको ना अनुसार या एक्ट को नेमिंग करा जायछि पिट्स एक्ट ऑफ 1784 एंड सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द पिट्स एक्ट ऑफ 1784 द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वेर नाउ सेपरेटेड जेमति मु कहली प्रायर टू द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आसीबा पूर्वरु 1773 पूर्वरु बा हमें कहि परिया 1765 पूर्वरु ईस्ट इंडिया कंपनी केवल गोटे कमर्शियल कंपनी बा हमें कहि परिबा गोटे ट्रेडिंग कंपनी थिला बट 1765 परठु एंड 1773 परठारु एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री करूची पॉलिटिकल एक्टिविटीज को डील करूची बा एडमिनिस्ट्रेशन ने एंट्री करूची सो द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ईस्ट इंडिया कंपनी रो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोन करा गला ना सेपरेट करा गला एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 मेंबर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स सेट ऑफ टू गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया लिसन बुझिया पे हम से ट्राई करो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 मेंबर भारत रे नथिले जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थिला ब्रिटेन रे यूरोप रे जो ब्रिटेन रो गवर्नमेंट थिला ब्रिटेन गवर्नमेंट रे गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर को नहीं कि गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन करा गला जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रे दिजन रहिले कौन ना कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दायित्व दिया गला ब्रिटेन रे अगेन कहूँ ब्रिटेन रे दायित्व दिया गला जे माने भारत रो ईस्ट इंडिया कंपनी रो अफेयर्स को ब्रिटेन रे रही कौन करिवे ना रेगुलेट करिवे बा ताकू सुपरवाइज करिवे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स सेट अप करा गला अकॉर्डिंग टू 1784 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट देन 3 members will be there in the Governor General Executive Council. Just पूर्व हमें जो डिस्कस कले that is जो Governor General थे the Governor General of British Territories, Governor General of Bengal,
ओके गवर्नर ऑफ बेंगल जी थे तांको ही कह जाउतला गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज तो गवर्नर जनरल गोटे सिंगल पर्सन का हाथ में पावर को कंसंट्रेट न करी ये डिसाइड करा गला अकॉर्डिंग टू 1784 जे गवर्नर जनरल को अंडर रे गोटे 3 मेंबर गोटे बॉडी रहिबो जहा को कहा जिवो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 मेंबर बॉडी गोटे गठन करागला जहाँ को कहगला गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो गवर्नर जनरल विथ ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिसिकी वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिबे गोटे सीक्रेट कमिटी भी गठन कराइथला अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो कमिटी रे 3 डायरेक्टर्स थिले एंड समान को रेस्पॉन्सिबिलिटी थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो पॉलिटिकल एंड मिलिटरी अफेयर्स को कौन करिवे सीक्रेटली सुपरवाइज करिवे देन गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वेर फॉरबिडेन टू डिक्लेयर वार एंड मेक ट्रीटीज विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सीक्रेट कमिटीज ये जो सीक्रेट कमिटी गठन करा गला ए सीक्रेट कमिटीज रो बिना परमिशन रे गवर्नर जनरल होंतु बा गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडिया रे कोनोसी वार बा कोनोसी ट्रीटी साइन करि परिबे नाही ओके द नेक्स्ट मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वेर सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बेंगल इन ऑल मैटर जेमति पूर्व जेमिति थिला कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास थिला हमर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बट कोलकाता बॉम्बे मद्रास रो गवर्नर को मध्य रे बेंगल रे जे गवर्नर थिले तांको ही कह जाउतला गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज एंड तांको अंडर रे को माने थिले ना गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास से जिनसो इटी पुणी थरे कह जाउची दैट इज मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहार सबऑर्डिनेट रहइबो ना कहा सामने रे सबऑर्डिनेट रहइबो बा कहार सबऑर्डिनेट रहइबो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बेंगल इन ऑल मैटर सो इट्स ऑल अबाउट पिट्स एक्ट ऑफ 1784 देन नेक्स्ट चार्टर एक्ट of 1793 charter means we can say official order so charter act 1793 कौन कहूची ना expenses and salaries of the board of control to be charged on Indian revenue okay this is very important परवर्ती समय रे दादा भाई नारावजी ए कांसेप्ट ऊपर गोटे बहुत बढ़िया आइडिया देचंदी दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ओके हमें परवर्ती समय डिस्कस करिबा जे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आम देखिले 6 पर्सन को लेकिन गठन करा जाइतला से बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो एक्सपेंसेस एंड से बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो सैलरीज कोठु ड्रॉ करा जिवो ना इंडिया रो कलेक्ट करा जाउथवा रेवेन्यू रो ड्रॉ करा जिवो ओके डिसाइड करा जाइतला अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1793 all laws were now translated in the Indian languages and it laid the foundation of government by written laws and interpreted by the court this is very important प्रथम तर पई भारतीय मानक पई लॉ गुडी को कोन ना रिटेन फॉर्म रे लिखा गला बा लिखि के रखा गला एंड ताको कोर्ट को भी इंटरप्रेट करिया पे चांस दिया गला अकॉर्डिंग टू 1793 चार्टर एक्ट देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 company deprived of its trade monopoly in India except in tea and trade except in tea and trade with China according to Charter Act 1813 भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी जो तार ट्रेड मोनोपोली एंजॉय करथला ताहा ऊपरे कंस्ट्रेंट लगे दिया गला ता ऊपरे कंट्रोल लगे दिया गला केवल टी ता सहित चाइना सहित जो से माने ट्रेड करथले ताकू ही एला करा जाउतला एक्सेप्ट दैट कंपनी को ट्रेड मोनोपोली एंजॉय करबा को दिया गला नाही 1813 काहे कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिका फोकस करिया पे कहा गला ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन बा पॉलिटिकल अफेयर्स रे बहुत इन्वॉल्व कर दिया गला दिस मेड द कंपनी मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जहा कि मु जस्ट कहली कंपनी को गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रे कन्वर्ट करबा को लागि थिला ब्रिटिश क्राउन एंड ऑल इंग्लिशमैन कुड ट्रेड विथ इंडिया सब्जेक्ट टू फ्यू रेस्ट्रिक्शंस फर्दर this is very important that is Christian missionaries were also permitted to come to India and to preach their language according to the Charter Act 1813 the next is Charter Act 1833 end of company's monopoly event tea and trade with China tea and trade with China को जो ताऊपरे जो कंपनी मोनोपोली को अंततः दिया जाइतला ताकू भी एंड कर दिया गला अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1833 कंपनी वाज asked to close its commercial businesses at the earliest एंड कंपनी को कहा गला ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गला जे तार बिजनेस बा तार ट्रेडिंग बंद करिवो एंड कंप्लीटली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इंडिया रे वर्क करिवो and Governor General of Bengal to be the Governor General of India. The creative confusion start.
ये कौन कहा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूर्व देख आम पढ़ी गवर्नर ऑफ बेंगल टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज ओके जो कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास तीनोटी रीजन थिला तीनोटी जो कहा जाउथला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एमानक भितरे जो कोलकातार जे गवर्नर जी थिले गवर्नर ऑफ बेंगल जी थिले तांको से समय गवर्नर ऑफ बेंगल थिले किए ना वारेन हेस्टिंग मुझे कहवाई भूली गली गवर्नर ऑफ बेंगल से समय किए थिले ना वारेन हेस्टिंग सो वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल देखो गवर्नर जनरल माने कौन कहली गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज वारेन हेस्टिंग कौन थिले गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटोरीज ओके एंड गवर्नर ऑफ बेंगल थिले वारेन हेस्टिंग कोलकातार गवर्नर भी थिले बेंगल रा गवर्नर भी थिले ता सहित गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज ऑफ इंडिया जो तीनोटी प्रेसिडेंसी थिला से तीनोटी प्रेसिडेंसी रो गवर्नर जनरल थिले कि ना वारेन हेस्टिंग बट नाउ अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1833 1833 मसीहा पहुँचु केवल तीनोटी प्रेसिडेंसी नुह आहरी बहुत गुड़ाए जोग्राफिकल टेरिटोरीज उपरे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करुला तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को डिक्लेयर कर दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से कौन थिला ना गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ये कौन कह ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल पावर्स administrative and financial were centralized in the hands of governor general in council and first governor general of india किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक ओके तो अगेन कहूँ गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहले आम लिखा वारेन हेस्टिंग कन्फ्यूज हेनी एंड फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब आम कहे देन होल इंडिया ये प्रेसिडेंसी कथा कहुनी किए थे ना लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड पूर्व जो आम डिस्कस कले दैट इज गवर्नर जनरल अंडर गोटे 3 बॉडी काउंसिल रोला जहाँ को कहुला गवर्नर जनरल इन काउंसिल बर्तमान भी सेम से गवर्नर जनरल इन काउंसिल ता हाथ में सबु प्रकार पावर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर को कौन कर दिया ना सेंट्रलाइज कर दिया गला से बेंगल रो गवर्नर जनरल को ही डिक्लेयर करा जायतला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकेम द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स ओके लिसन आम पढ़ी गोटे 6 मेंबर बॉडी थिला जहाँ को कह जाउतला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे 2 जन मिनिस्टर्स थिले ब्रिटेन रो मिनिस्टर्स भी थिले तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो जे मिनिस्टर थिले से मिनिस्टर को कहा गला मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर अगेन कहूँ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो मेंबर थिले ना ब्रिटेन रो जो गवर्नमेंट थिला ओके इंडिया रे नो ब्रिटेन रो जो गवर्नमेंट थिला ब्रिटेन रे जो तांकर मंत्रिमंडल थिला से मंत्रिमंडल भितरे जन मिनिस्टर थिले जी कि थिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो प्रेसिडेंट एंड सी थिले ब्रिटेन गवर्नमेंट रे द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर जी कि ब्रिटेन रही भारत रो एडमिनिस्ट्रेशन को बा ईस्ट इंडिया कंपनी रो अफेयर्स को डील करथुले ओके सो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकेम द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स ए लॉ मेंबर वाज एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल मैकाउले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड दिस इंक्रीज द काउंसिल स्ट्रेंथ टू 4 with it began the Indian legislature this is very important बर्तमान आम जो देखुचे legislature executive and judiciary ये जो legislature executive रा देखो रूट देखो पूर्वर लेजिस्लेचर एक्जिक्यूटिव केमिति वर्क करथुला देखो पूर्वर थिले गवर्नर जनरल जणे तांको अंडर रे 3 बॉडी गोटे मेंबर गठन करा गला जहा को कहा गला गवर्नर जनरल काउंसिल कौन कह जाउची वर्तमान से गवर्नर जनरल जो काउंसिल थिला जहा को हम कहउतले गवर्नर जनरल एक्जिक्यूटिव काउंसिल भी हमें कहि परिबा से एक्जिक्यूटिव काउंसिल रे टोटल मेंबर केते थिले 3 थिले वर्तमान सेटे आउट न्यू मेंबर ऐड हे होचंदी जहा को हमें कहउतले लॉ मेंबर एंड प्रथम लॉ मेंबर किए थे फर्स्ट लॉ मेंबर थे मैकाउले ओके ए लॉ मेंबर वाज एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल एंड मैकाउले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड दिस इंक्रीज द काउंसिल स्ट्रेंथ 3 रु इंक्रीज करिगला 4 को विथ इट बिगन द इंडियन लेजिस्लेचर आर अर्थ कौन ए जो
फोर मेंबर काउंसिल टी गठन होला ए 4 मेंबर काउंसिल थिला भारत रो प्रथम लेजिस्लेचर जे कि आम पई कोन तयारी करतला ना लॉ तयारी करतला यस किंतु एथि मन रखियार अछि ब्रिटिश गवर्नमेंट रो सुपरविजन रे अगेन आई एम टेलिंग यू भारत रे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अंडर रे जो गोटे काउंसिल थिला 4 मेंबर काउंसिल थिला दैट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ वी कैन से इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल हाँ भारत जिते ब्रिटेन बा ब्रिटिश द्वारा जिते शासन होता से समय ए 4 मेंबर काउंसिल ही थिला प्रथम काउंसिल जे कि जहाँ आम लेजिस्लेचर भाव आम कनसीडर करते एमाने ही थिले प्रथम बॉडी जे कि भारत पई इंडिया रे रही लॉ तैयारी करते बट रिमेंबर अगेन ए काउंसिल टी ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे थिला तो ए काउंसिल को ब्रिटेन रो गवर्नमेंट सुपरविजन रे वर्क करिवार थिला Then a law commission was constituted for coordination of laws and a law commission ro head किए थिले ना मकाउले slavery system India रो abolish कर दिया गला slavery system in India was declared illegal according to 1833 Charter Act and it was abolished in 1843 so remember slavery system in India was abolished in 1843 but slavery system को illegal declare कराइथला according to the Charter Act of 1833 next one is Charter Act of 1853 the law member was made the full member of the Governor General Executive Council Governor General Executive Council रा full member declare कर दिया गला law member को according to 1853 then legislation was treated for the first time as a separate from executive function ओके जो आमे को देखी थिले गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहाँ को आमे लेजिस्लेटर भाबे बा लेजिस्लेचर भाबे आमे कंसीडर करूथले वर्तमान से लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू कौन करा जाउची फर्स्ट टाइम बाय सेपरेट करा जाउची एंड क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड एंड द पॉलिसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुड बी डिस्कस तो लेजिस्लेचर बा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पार्टी थिला से माने जहाँ भी लॉ तैयारी करथले बा जहाँ भी डिसीजन बा पॉलिसी आनुथले से सब को डिस्कस भी करा जाउथला एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दैट इज रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस वाज बेस्ड ऑन ओपन annual competition exam but एठी इंडियंस मानन को एक्सक्लूड करा जायतला तो हम कहि परिबा सिविल सर्विस एग्जाम भी इंडिया रे इंट्रोड्यूस कराइतला अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1853 बट इंडियंस मानन को अलाउड करा जाउ नथला अंडर रे एग्जाम रे इंडियंस माने अलाउड नथिले सो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से some constitutional experiments or you can say some administrative or you can say that is legislative developments under the East India Company 1773 ru 1857 भितरे कौन सब administrative arrangements ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अना जाइथिला बा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंडिया रे इंट्रोड्यूस कराइथिला एंड एठी गोटे हमर आइडिया डेवलप हेइथिबो जे केमिति भारत को केमिति शासन करबा को लागिले भारत रो शासन प्रक्रिया केमिति आरंभ होइतला एक्चुअली कहि परिबा गोटे फॉर्मल वे रे 1773 रो आरंभ होइतला हमर शासन प्रक्रिया हमको एडमिनिस्ट्रेशन करा गला अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एई भली हमें कहि परिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन टी धीरे धीरे कोन होतला माने इवॉल्व होतला बट अगेन कोचे भारत रो वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखुचे से कॉन्स्टिट्यूशन टी प्रिपेयर करा जाइतला 1946 रो 1950 मध्य रे बट से कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करिया पई जो आइडियाज ता पई जो एक्सपीरियंस आवश्यकता थिला से एक्सपीरियंस हमको कोठो मिली छि ना से एक्सपीरियंस मिली छि हमको ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिश ओके ब्रिटिश रूल समय ही हमको से एक्सपीरियंस मिली छि सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन नेक्स्ट वीडियो रे हमें ए टॉपिक को ही कंटिन्यू करिबा एंड वी विल डिस्कस दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट constitutional experiment under the British Crown 1858 to 1947 आमे नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करिबा सो स्टूडेंट्स जदि वीडियो टी आपन को हेल्पफुल हेतिबो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब भी करंतु चैनल को बेल आइकन को भी निहाती हिट करंतु सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसीबो एंड फ्रेंड्स मानक सहित निहाती चैनल टी को शेयर भी करंतु
And if you want to access to video that is notes of this video lecture, then join my Telegram channel, and the link is provided in the description. So thank you for watching.